So guys, आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं, it is, I can proudly say, we can proudly say that it is one of the biggest film coming from the Malayalam film industry. जी हाँ, जिस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका जो प्रीक्वल था 2019 को जो रिलीज हुआ था, we are basically talking about L2E एम्पुरान, that is Lucifer Part 2. उसके नाम Part 2 का नाम है एम्पुरान. इसका जो फर्स्ट था लूसीफर 2019 को रिलीज हुआ था, ये इस फिल्म ने बहुत सारे जो स्ट्रक्चराइजेशन है मलयालम फिल्म का उसको चेंज किया. आई वोंट से कि एक एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल सेट कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा रिलीज, एक मेगा रिलीज, एक ब्लॉकबस्टर सुपर मेगा हिट फिल्म वहां से आई, विच हैज इट्स ओन स्टाइल और एक अलग ही कल्ट क्लासिक बन गई ये फिल्म, और ऊपर से इतना बड़ा सक्सेसफुल फिल्म भी है. और मोर ओवर दिस फिल्म इज कमिंग फ्रॉम आवर होम टाउन. हमारे पापा वहां से बिलोंग करते हैं, एंड माय फादर, वी आर मलयालीज एंड बंगाली एज वेल. तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस गाइस, क्योंकि लूसीफर पे हम लोगों ने रिएक्शन नहीं किया, हमारा चैनल था ही नहीं. पर हमने एक L2E एम्पुरान के एक अनाउंसमेंट वीडियो में शायद हमने रिएक्शन दिया था, वो लगभग 1 या 1.5 साल पहले रिलीज हुआ था. So we are connected. Yes guys, and we are very much excited क्योंकि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस पर हम लोगों ने रिएक्शन दिया है, and we are quite glad जो भी हम लोगों ने as of now एक्सपीरियंस किया है. मिन्नत मुरली कह लीजिए, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं. We are proud of that industry, we always had been. और उस इंडस्ट्री से एक मेगा बजट फिल्म आने वाली है जो सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को नहीं, द एंटायर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को चेंज करने वाली है. बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ही कुछ बनने वाले हैं, एंड one and only star Lalaton, Mohanlal sir, and it is being directed by Prithviraj Sukumaran. So without wasting any time, we are going to react on the official trailer. लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, और ऑल पे जाके सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे. And without wasting any time, let's react. എന്റെ മക്കളല്ല എന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ. എന്നെ പിന്തുടരുന്നവർ ആരാണോ അവരാണ് എന്റെ മക്കൾ. പി കെ രാംദാസ് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഈ പാർട്ടി ഈ സംസ്ഥാനത്തിനെ നിരന്തരം തളർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുന്നിൽ നിന്ന് പൊരുതിയ ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ല. മതേതരവാദികൾ ഞെട്ടിത്തരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ കേൾക്കും. राजनीति एक धंधा है हमारे देश में. പക്ഷേ വരുന്നതേ അത്ര ചില്ലറ കൈയല്ല. മനുഷ്യജീവന് മുകളിൽ ഒരു രക്തബന്ധത്തിനും വിലയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. दिखाने के लायक ही अभिमन्यु सिंह. पर शुरू से वो एक के नाम से डरते थे. ഈ ഡ്രഗ് കാർട്ടൽസ്, ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവരെല്ലാം ജനറലി കേക്കെതിരാണ്. സ്റ്റീഫൻ, where is he now? Now you are going live. This is UK, London, France, Yemen. Holy बापरे बाप. Here comes the man. उसकी आंखें सब देख रही है. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ഇടയിൽ വിരിഞ്ഞ ഇരുട്ട് പൂവ്, തമോഗോളങ്ങളുടെ എമ്പുരാൻ. Wow. ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ജാൻവിയല്ലാതെ ഇനി ഈ ലോകത്ത് രക്തബന്ധം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരാളേ ഉള്ളൂ അങ്കിൾ. പണ്ടെപ്പോഴോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വെറും ഒരു MLA മാത്രമായിരുന്നു ഒരാൾ. അയാളെ Big combined cast. Yeah. നമ്മൾ അറിയാത്തത് എന്തോ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളിയുടെ കഥയിലുണ്ട്. Wow. Face the world unproud. ദൈവപുത്രൻ തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെകുത്താനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെ Looking ആശ്രയിക്കും? great. Yeah. The enemy of an enemy is a friend. Right. Wow. Prithviraj. Wow. The director himself. Yeah. We have to end this war. Massive है. इसका मतलब जो लेवल है काफी बड़ा है. Scale is huge. Grand scale है. So Stephen, come back. Save you, man. I like that shot. My God. God soon comes through.
Nice Wow, nice shot. Another level, See, another this level. Something very unique. Oh, edits, epic, epic. But answer this one question. Who are you really? Lucifer. Wow. IMAX. Tamil, Telugu, Kannada, Hindi. Great. So we reacted on the official trailer for L2E, that is Empuran, Yes. Lucifer 2. इसमें बहुत there was a very beautiful metaphor which was used in this in the trailer कि Lucifer is asked to save God's own country. How beautiful is that? How beautiful, yeah. कितनी beautifully कोई कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिनेमा में दिखाने के आप में वो दम होना चाहिए, आप में वो क्राफ्ट का विजन होना चाहिए, Yeah. तब जाके ये सब चीजें आती हैं डायलॉग्स पे, सीन पे, स्क्रीन पे, हर चीज में. Yes. और एम्पुरान दिस ट्रेलर इफ यू नोटिस, मैंने हम दोनों बता दें कि हम लोगों ने लूसीफर नहीं देखा है. Yeah. तो अनफॉर्चुनेटली वी आर हमें वो मौका नहीं मिला कि हम लोग बता पाए कि व्हाट इज दिस एपिकनेस इज ऑल अबाउट. या पर अब ये ऐसा एक मोड आ गया है गाइस कि अब हमें पहले L2E देखने से पहले हमें लूसीफर बहुत ही जल्द देखना पड़ेगा, जरूर देखनी क्योंकि चाहिए. इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो काफी नजदीक आ चुकी है 27 मार्च. एंड हमारा जो ओपिनियन रहेगा, जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो इस ट्रेलर से रिगार्डिंग रहेगा, ना कि लूसीफर और इस फिल्म को लेकर, क्योंकि हमें इसके स्टोरी लाइन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है. लेकिन whatever we have understood, जो Yeah. भी हम लोगों ने देखा है as of now in एम्पुरान ट्रेलर, यस. ये आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर कुछ जो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने लूसीफर नहीं देखी होगी, शायद फ्रॉम सम अदर स्टेट, और वो उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा टू वॉच एम्पुरान, और मलयालम सिनेमा के बारे में थोड़ा बहुत पता चले. बहुत लोगों को ये एक अजीब सा एक शॉक लगेगा when they are supposed to expect कि ये शायद बाहुबली हो या KGF हो, लेकिन ये होती नहीं है, क्योंकि इतनी बढ़िया इसका ट्रेलर जो आप देखिए, ये मास फिल्म नहीं बनाती है. इट इज सुपर पॉलिटिकल और टू द पॉइंट एक्शन फिल्म है, And और sticking to the storyline. इतना ग्रिटी और इतना एज पे बनाया गया ये फिल्म. जो ट्रेलर में अभी तक तो मुझे जो दिख रहा है हम दोनों को, इट इज वंडरफुली crafted trailer and a film which is एंड सीरियसली गाइस, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बचपन से मैंने मलयालम फिल्में देखी है, हम दोनों ने देखी है. एंड ये एक मतलब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से आप बहुत ज्यादा मतलब उसमें इतना भरोसा कर लेते हो ना उनके क्राफ्ट को आपको पता चल जाता है कि भरोसा की बात नहीं है ना, लोग मतलब उनको पता ही नहीं कि ऐसे भी होता है फिल्म. यस. तो उसके ट्रेलर से मुझे ये एक्सपेक्टेड थी कि मुझे ज्यादा कुछ मतलब ओवर द टॉप चीजें मुझे देखने को नहीं मिलेंगी. ऑन द पॉइंट जो चीजें हैं मुझे वही देखने को मिलेंगी. जो ये एक नेक्स्ट, हाँ मुझे ये पता था कि लूसीफर से ये एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. इसका जो ग्रैंड स्केल है उसे ग्रैंड बनाया जा रहा है. लोकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब चाइना, फ्रांस, यमन, और ये ऐसा है ना कि जो बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी फिल्में ये जो भी ये सब चीजें करने में मिस आउट कर जाते हैं, और उन्हें ये आइडिया पता नहीं क्यों नहीं रहता है. जो चीज मैं बता रहा था कि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं कि जिस रीजन को दिखाया जा रहा है इंडिया का, वही के एक्टरों को लाया गया है, उठाया गया है, लिया गया है. यू सी जो अभिमन्यु सिंह जी हैं, और फिर वी हैव सीन दिस सिस्टर फॉर आमिर खान, जो बेसिकली वो एक वुमन, एक औरत, अनफॉर्चुनेटली उनका नाम मुझे नहीं पता, पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रही है वो. तो ये you combine our languages ताकि it is for a bigger audience, और I know that bigger audience अभी पैन इंडिया फिल्म तो है, लेकिन it's still बहुत ऐसे situations हुए हैं जब एक किसी हिंदी स्पीकिंग एक्टर को अब मलयालम कैरेक्टर के लिए लेते हो, एंड मुझे they do not do that justice. यही मैं रिदा ने सही बताया कि यहाँ पे अभिमन्यु सिंह को देख के मैं काफी शॉक्ड रहा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने तमिल तेलुगु में उन्होंने फिल्में की है, कमर्शियल फिल्में की है, पर इस फिल्म में उनका रोल मुझे लगता है कि काफी यूनिक होने वाला है. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लालटेन मोहनलाल सर के बारे में.
वहां पे जो इनका ट्रेलर में जो प्रेजेंस है ना गाइस, मतलब राइट कभी कभी मैं काफी शॉक्ड हो जाता हूँ और मुझे काफी अच्छा भी लगता है, प्राउड फील करता हूँ कि एक एक्टर, एक सुपरस्टार जो अर्ली 80s में दो हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट लालटेन सर, मम्मूटी सर, या मोहनलाल सर के बारे में अगर बात करें, एक एक्टर है जो 80s के मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने एज अ नेगेटिव रोल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने हीरो का रोल किया, फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने किए, फिर जाके उन्होंने इतना बड़ा एक अपना मुकाम तैयार किया और अब एम्पायर, जो हम देखते हैं, लूसीफर में जैसे मोहनलाल सर की जो एंट्री होती है, इट्स जस्ट लाइक दैट रियल लाइफ, बिकॉज ही इज दैट ह्यूज और ये शॉकिंग है, एक बहुत बड़ा शॉक है जो शायद अभी तक ये अचीव नहीं कर पाए, शायद दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन और बहुत ऐसे, राजेश खन्ना साहब, ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो है ना, ये जो ड्यूरेशन है कि अपने स्टारडम को मेंटेन रखना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड वी कांट 80s से मेंटेन किया, 80s से, वही मैं बता रहा हूँ कि 80s के स्टार्टिंग से लेके नाउ इन 2025 आप देख सकते हैं कि इनके फैंस, मतलब इनकी फिल्मोग्राफी को आप देखेंगे ना गाइस, वी कांट डिस्क्राइब, मतलब हम कह भी नहीं सकते। ये बेसिकली इट इज नॉट अ शाहरुख खान और ऋतिक रोशन व्हिच इज कमिंग डाउन टू वर्क, क्योंकि देखिए शाहरुख खान भी उन्होंने 80s में काम किया है, लेकिन वो काम मतलब क्या कहें, 80s है, उन्होंने अर्ली 90s में उन्होंने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इट इज नॉट अबाउट ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन अगर बॉलीवुड में है तो उनको शायद ऐसी फिल्में मिले कि मास एंट्री है एंड ऑल दैट, पर इन दोनों लेवल पे मोहनलाल सर जिनका जर्नी इतना पुराना है, 80s की वो जो स्वीट फिल्में और बहुत पावर हार्ड हिटिंग फिल्में जो होती थी, वहां से यहाँ तक की जर्नी वेयर जो मतलब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मेगा बजट, द मोस्ट एक्सपेक्टेड, हाईली एक्सपेक्टेड ट्रेलर पे उसका मेन लीड हो मोहनलाल, जो 80 से रूल कर रहा है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैपन इन एनी इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आप उनके फिल्मोग्राफी को देखोगे तो कोई भी ऐसा जॉनरा नहीं है जो उन्होंने कवर नहीं किया, इसके ऊपर उन्होंने सब किया है और इतने सारे नेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, टॉक अबाउट इट, और ये काफी मतलब शॉकिंग बात है कि आपको नॉर्थ इंडियंस के बहुत सारे ऑडियंस को मोहनलाल सर के बारे में और ममूका सर के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके फिल्मों के बारे में नहीं पता। सो हम दोनों को शायद हम दोनों को सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पता हो, लेकिन और बहुत से इंडस्ट्री में ऐसे लेजेंड हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, यही है हमें एक मौका मिला दैट as we are using this reaction channel, हमें ये मौका मिलता है काफी सारे इंडस्ट्री में जाना, उनके फिल्म्स को देखना, आर्ट को स्टडी करना, उसके बारे में डिस्कस करना, ये काफी यूनिक है क्योंकि हमें बहुत सारे ओरिजिनल फिल्मों के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे गाइस एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में बात करना चाहूंगा, उनकी जो डायरेक्शन जिस तरह से उन्होंने की है, माय गॉड, पांचों उंगलियां घी में है। वी टॉक अबाउट इम्तियाज अली, we are talking about many directors, Bollywood directors, इतने सारे बात करते हैं कि ये है वो है, अनुराग कश्यप है, पर आप देखिए कि यहाँ पे पृथ्वीराज ने जिस तरह से इन दो फिल्मों को डायरेक्ट किया है, और भी कई सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है, पर इन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट करना मतलब ये बहुत बड़ी बात है, खाने का काम नहीं है। आप मोहनलाल जी को ले रहे हैं इस फिल्म में, और इतना और भी कई सारे बड़े एक्टर्स हैं, इसको ये बात हो चुकी है, यस, इसका जो फेम है इस लेवल को मैच करना, जहां एक पूरे इंडस्ट्री का प्रेशर आपके कंधों पे रहता है एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर एज वेल, एंड आप स्टोरी से ना भटके नहीं, ये उसको और एक लेवल पे आगे लेके जाए। जो हम दोनों ने थोड़ी देर पहले जो बात की कि इस फिल्म को आप फिल्मी मासी मसाला फिल्म नहीं बनाते, उसका जो एसेंस है उसे मेंटेन रखते हो, तब जाके ये फिल्म दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग हटके होती है, उसका जो वेट है, जो हेवीनेस है ऑफ बीइंग अ ह्यूज फिल्म, वो भी मेंटेन रहता है। एंड एवरी शॉट ऑफ दिस ट्रेलर गाइस मैंने देखा टॉप नॉच, गुड एडिटिंग और गुड कलर ग्रेडिंग, आई मस्ट से बहुत बढ़िया। और मैं कह सकता हूं नेवर सीन बिफोर बहुत सारी चीजें हैं जो इस ट्रेलर में, जो आपने इससे पहले कभी देखी भी नहीं है इंडियन फिल्म के किसी भी ट्रेलर में। आई एम गोइंग टू से ये हम लोग कहना चाहते हैं कि दिस फिल्म विल बी सेटिंग एन एग्जांपल। और गाइस आप सबको याद दिला दूं, आपने ट्रेलर में भी देखा है कि ये मलयालम फिल्म की पहली ऐसी फिल्म है जिसे आईमैक्स में रिलीज किया जा रहा है, सो आप समझ सकते हो कि ये
डिजर्व्स। कितनी बड़ी फिल्म है और कितने ग्रैंड स्केल में इसका प्रमोशन हो रहा है और भी कई सारे प्रमोशन इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और लेकिन डेट तो एकदम नजदीक आ गई है, 27 मार्च को। रिसेंटली और मेकर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है ना। या एकदम अचानक से रात को आपको हम लोगों को शॉक दिया जाता है कि द ट्रेलर हैज ड्रॉप्ड, या हड़का मच जाएगा, यू नो यूट्यूब विल क्रैश। और गाइस यहाँ पे अगर पृथ्वीराज सुकुमारन के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग था और कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसे कोई मिलिट्री ऑफिसर ऐसा कुछ रोल प्ले कर रहे हैं या बेसिकली। अच्छा, जहां तक मुझे पता है कि रिसेंटली जो फिल्म बनी थी चिरंजीवी सर की गॉडफादर, आई गेस वो लूसीफर का ही रीमेक था। ऑलराइट, तो वहां पे जो पृथ्वीराज सर जो रोल कर रहे हैं, शायद सलमान सर ने वो रोल किया था शायद, वो भी हम लोगों ने नहीं देखी। गॉडफादर भी हम लोगों ने नहीं देखी और शायद हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पिछले गॉडफादर के रिएक्शन पे कि ये लूसीफर का रीमेक है। बट हाउएवर लूसीफर वी विल ऑलवेज गो बैक टू द ओरिजिनल। अगर इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, आई बिलीव they are basically repeating the same team and making the film much more better. और यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी नए कैरेक्टर्स इंक्लूड किए Right, we have seen Kishore Kumar as well out here, the great actor from कांतारा और बहुत सारी तेलुगु तमिल फिल्मों में उन्होंने काम किया। टोविनो थॉमस, मिन्नल मुरली फेम, इज अ ग्रेट स्टुपेंडस एक्टर। मैंने उनके आते ही मैंने ये क्यों कहा बहरूपिया, क्योंकि यू लिटरली सी हिम इन एवरी अदर फिल्म और वो पहचाने नहीं जाते। हर एक फिल्म में उनका एक अलग लुक होता है एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट एन एक्टर व्हिच द एक्टर शुड डू, राइट। तो इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में जरा सा क्विकली बात कर लेते हैं सो दैट वी नो हु इज देयर इन दिस फिल्म एंड हु इज बेसिकली वर्किंग बिहाइंड दिस फिल्म। सो जैसे हम लोगों ने बताया, दिस फिल्म इज बीइंग डायरेक्टेड बाय पृथ्वीराजन सुकुमारन और इस फिल्म को लिखा है मुरली गोपी ने। द फिल्म इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय आशीर्वाद सिनेमास और लाइका प्रोडक्शन भी कर रही है। और जैसे हम लोगों को पता है, कास्ट एंड क्रू में द लीड आउट हियर इज मोहनलाल, देन वी हैव पृथ्वीराज सर और there are many other people in this film. Yes. और मंजू वॉरियर भी है इस फिल्म में. Yes. Right, and अभिमन्यु सिंह भी है. This film is going to release on 27th of March 2025. बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है, बस इसी महीने. And in also in IMAX format. many IMAX format में तो है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी है. हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम तो फॉर श्योर है. Yes. एंड जैसे हम लोगों को पता है, द म्यूजिक हैज बीन गिवन बाय दीपक देव. वी नीड टू फोकस ऑन द बीजीएम, वेरी नाइस. Yes. और इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं सुजीत वासुदेव. नाइस जॉब, वेरी गुड. एंड काफी ग्रैंड स्केल पे लग रहा था. जो भी शॉट्स मैंने देखे यहाँ पे काफी अलग था. सी, ये फिल्म ब्रेथ टेकिंग तो होगी ही और ये एक मतलब सिनेमा फिल्म मेकिंग को बहुत अलग तरीके से चेंज करने वाली है. Yes. This is going to make big news और it is going to change cinema forever. Yes, At least the Malayalam film industry and the cinema, the film making style. Yes guys, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म होने वाली है. बॉक्स ऑफिस के जितने भी नंबर्स लूसीफर्स ने बिल्ड किए थे, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे बीट करेगा श्योर. सो यही था गाइस हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ L2E एम्पुरान. तो आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, वो आप कमेंट मोहनलाल सर के बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारे चैनल से जितने भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को व्हाट्सएप में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि हमारा ये जो टारगेट है 10K सब्सक्राइबर्स होने का वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए गाइस. वी नो दैट, वी बिलीव दैट कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लेकिन फिर भी इतना भी स्लो नहीं करना चाहिए. guys. 2-2.5 साल के ऊपर से कर रहे हैं. And we know you all are following our content, but ये एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये काम कर देंगे तो हमारा जल्द से जल्द कम्युनिटी करते हैं उससे ज्यादा बड़ा करेंगे. यू नो, वी विल ब्रिंग गुड वीडियोस, गुड रिएक्शंस, गुड रिव्यूज और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए. Until then, the reaction is says, जय हिंद.